My dear friends, I welcome you to the solution of the MCQs for the 6th lecture. ग्रेविटेशन लेसन चल रहा है 11th स्टैंडर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जवाब से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है रे क्वेश्चन? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी of mass 1 kg from the earth's surface is 11.2 kilometer per second. That's what we know. The escape velocity of another body of mass 10 kg will be how much? बच्चों, escape velocity का फॉर्मूला है रूट ऑफ 2gm अपॉन r, और escape velocity कौन सी बॉडी फेंकी जा रही है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एस्केप वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मॉल m। ये ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मुझे फेंकना है अर्थ के बाहर, एस्केप कर देना है तो भी 11.2 किलोमीटर सेकेंड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर 1 kg के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वही 10 kg के लिए भी होगी। आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, और ऑप्शन को गोल करते हैं। सो इट इज डी, फोर्थ ऑप्शन। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही एस्केप वेलोसिटी रहेगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर हाफ that of Earth. Mass of the planet is half the mass of Earth. Radius of the planet is half the radius of the Earth. Mass of the planet is half the mass of Earth. Radius of the planet is half the radius of Earth. The ratio of gravitational potential energy of the body, okay, potential energy of the body on the planet upon potential energy of the body of the same object on earth will be how much? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही पूछा है क्या? The ratio of the gravitational potential energy of a body on the surface of the planet to that of earth. Okay, so what is the formula? The formula is minus gmm upon r, planet upon minus gmm upon r, earth, राइट? तो माइनस माइनस कट, जी कट, मास वही है, बॉडी का मास वही, इसलिए वो मास भी कट हो जाएगा। वी विल हैव द रिजल्ट मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन द मास ऑफ अर्थ इज हाफ radius of planet, radius of earth upon radius of planet is 2. The answer is 1:1. The answer is 1:1. है क्या ऑप्शन? Yeah, the answer is A, first option. The answer is A, first option. चलिए सवाल नंबर 3 का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. A satellite of mass m is launched from the Earth's surface in a circular orbit. Okay, if m and r denote mass and radius of the earth respectively, then the total energy of the satellite at altitude 2r is equal to how much? Total energy of the satellite at altitude 2r is equal to how much? Potential energy minus gmm upon small r, which is minus gmm upon कितना दिया उन्होंने? अल्टीट्यूड। टोटल एनर्जी एट अल्टीट्यूड 2r, अल्टीट्यूड यानी r प्लस h इज इक्वल टू 2r माइनस gmm upon r plus 2r, that is minus gmm upon 3r, that is the potential energy.
काइनेटिक एनर्जी भी ढूंढनी है. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m vc square, half m square root of gm upon small r का square. This is gmm upon 2. स्मॉल r कितना है बच्चों? 3r into 3r, that is gmm upon 6r. काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब हमको क्या ढूंढना है? क्या पूछा है उन्होंने? टोटल एनर्जी. ओके, सो टोटल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ द टू. टोटल एनर्जी विल बी minus gmm upon 3r plus gmm upon 6r, that is gmm upon r minus 1 by 3 plus 1 by 6, that is gmm upon r. 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 plus 1, minus 1 by 6, minus 1 by 6. So minus gmm upon 6r. एक डेरिवेशन के तौर पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन. टोटल एनर्जी पूछी है, द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन. आज 12 क्वेश्चंस है हमारे, तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं. द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन on a body of mass m so that it escapes from the earth's gravitational influence of a planet radius m और ये. okay, so work कितना करना पड़ेगा? how much is the work done? वही है ना क्वेश्चन, how much is the work done? work done will be equal to the energy. work done will be equal to the energy supplied. Energy is supplied in the form of kinetic energy, half of m into ve square, that is half of m into square root of gmm upon r ka square, that is 2 times gmm upon 2r, that is gmm upon r. The work done will be energy supplied. Energy supplied is half of m into ve square. It is supplied in the form of kinetic energy. escape velocity के जगह उसका एक्सप्रेशन डाल दिया, सॉल्व कर दिया. मेरा आंसर आ रहा है जी एम एम अपॉन आर, विच इज फर्स्ट ऑप्शन ए. फर्स्ट ऑप्शन. सवाल नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन. द मास ऑफ द मून is 1 by 81 times the mass of earth. Mass of moon is equal to 1 upon 81 times mass of earth. And radius of moon is 1/4 the radius of earth, right? okay. escape velocity हमको मून के ऊपर से ढूंढनी है. अगर अर्थ के ऊपर से escape velocity है, वो करेक्शन करो, 11.2 मीटर पर सेकेंड दिया उन्होंने. 11.2 मीटर पर सेकेंड दिया, वो किलोमीटर होना चाहिए था. ठीक है, जैसे दिया वैसे ले लेंगे. एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू 11.2 मीटर पर सेकेंड. चलो, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम मून अपॉन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज रूट ऑफ 2g into mass of moon upon the radius of moon upon 2g into mass of earth upon the radius of earth, that is square root of 2 gets cancelled, gg gets cancelled, mass of moon upon mass of earth into radius of earth upon the radius of moon. Escape velocity from the surface of the moon is 11.2 into square root of mass of moon upon the mass of earth 1 upon 81 into radius of earth upon radius of moon, that is 4. 11.2 upon 9 into 4. 11.2 upon 9 into 4 कितना आता है बच्चों? 11.2 into 4 upon 9,
द आंसर इज 11.2 अपॉन 9 into 4. Question number 5. अरे मैंने इसका रूट नहीं लिया, वही मैं सोच रहा था गड़बड़ कहाँ होगी। इसका रूट नहीं लिया मैंने। 11.2 इंटू 2 अपॉन 9, जवाब है 2.5। अगर इसको मीटर पर सेकेंड है भाई, इसको भी मीटर पर सेकेंड लिख दो, वो किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन इट इज ओके। द आंसर इज बी, सेकेंड ऑप्शन। द आंसर इज बी, सेकेंड ऑप्शन। अब क्या लॉजिक क्या है, मून के ऊपर की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होने की वजह से वहां अगर पहले गैसेस थे भी कोई, तो क्योंकि उनकी आरएमएस वेलोसिटी उन गैस की 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो गई और वो गैसेस भाग गए। अभी मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सवाल नंबर 6, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है रे गाइस? द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ स्पेरिकल शेल इज VE. Escape velocity from a spherical satellite is VE. Okay. The escape velocity from another satellite of double the radius R2 is equal to twice of R1 and half the mean density तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो ये था, कहाँ गया, ये था, उसको हमने डेंसिटी के टर्म में ढूंढ लिया है। क्या है? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g, फिर क्या 2g, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, सो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ये रिजल्ट आएगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई रो जी अपॉन 3 इंटू आर। सो VE2 अपॉन VE1, शायद यही पूछा है, VE2 अपॉन VE1 जो VE है इज इक्वल टू हाउ मच? सो इट विल बी इक्वल टू, बाकी सब कांस्टेंट है, इट विल बी R2 अपॉन R1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ρ2 upon ρ1. Escape velocity in the second case is equal to escape velocity in the first case, R2 upon R1 that is 2, R2 upon R1 that is 2 into ρ2 upon ρ1 that is 1 upon √2. This will be equal to √2 से मल्टीप्लाई करो, 2√2 upon 2. Answer is VE into √2. Answer of the 6th question guys is VE into √2. ऑप्शन नंबर है C। चलिए 7वें सवाल का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। A planet has twice the radius that of Earth. Planet has twice the radius that of Earth, but the density is 1/4. CET में आया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 1/4 द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो पूछा क्या है गाइस? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट? एस्केप वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम अर्थ टू द प्लैनेट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस यहाँ से, सो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, एंड इट इज directly proportional to the square root of density, so it is earth, density of earth upon density of planet. Radius of earth RE लिखो, radius of planet के जगह 2 times radius of earth लिखो, into density of earth के जगह कुछ भी मत लिखो, density of earth, radius of density of planet के जगह लिखो 1/4, ये आ गया 1/2 into square root of 4. The answer is 1:1. Escape velocity from the earth to the planet is 1:1. सही जवाब है A, फर्स्ट ऑप्शन। सही जवाब है A, फर्स्ट ऑप्शन। बचे हैं 5 सवाल।
और इनको लिखने के लिए थोड़ी जगह बनाते हैं। पहले आप उसके आगे के तीनों चारों सवालों को भले सॉल्व ना करो, पढ़ के रखो। लेसन नंबर जो है अपना ग्रेविटेशन, सीबीएसई के बुक 1 का पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट लेसन है। और 6 लेक्चर में हमने जो एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट्स को देखा था, उनको हम अप्लाई करना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द्वारा सीख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अभी 8th क्वेश्चन की। क्या है 8th क्वेश्चन? The angular velocity of rotation of the planet of mass m and radius r at which the matter starts to escape from its equator is how much? Angular velocity ढूंढना है जब मैटर एस्केप करना शुरू करेगा। तो कैसे करेंगे? सिंपल, एंगुलर वेलोसिटी ढूंढनी है। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे एस्केप वेलोसिटी मालूम है, रूट ऑफ 2gm अपॉन r। अब मुझे एस्केप वेलोसिटी ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एस्केप वेलोसिटी के लिए इसको लिखूंगा, एंगुलर वेलोसिटी में जाना, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो आई राइट v के जगह r ओमेगा। r इंटू ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन r रूट ऑफ 2gm अपॉन r। इसको अंदर ले लो रे भाई, रूट ऑफ 2gm अपॉन r क्यूब। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन r क्यूब। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए रे, है क्या? देख, रूट ऑफ 2gm अपॉन r क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, रूट ऑफ, यस इट्स ए, फर्स्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 9, 9th क्वेश्चन, राइट। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर क्या है? एंड इट्स एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल। Acceleration due to gravity on planet is 2 times the acceleration due to gravity on earth। ठीक है, फिर what is the value of escape velocity at the planet as compared to that of earth? escape velocity planet के ऊपर कितनी आएगी? escape velocity on planet upon escape velocity of earth root of 2gr, बराबर है ना। escape velocity का फॉर्मूला है 2gr। ये कौन है भाई? प्लैनेट डिवाइडेड बाय 2gr। ये कौन है? अर्थ। कट हो गया रे। g ऑफ प्लैनेट अपॉन g ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, रूट ऑफ g ऑफ प्लैनेट 2 times g ऑफ अर्थ अपॉन g ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट 1/4 the radius of earth upon radius of earth. This is 1 by root 2 escape velocity from planet upon escape velocity from earth, escape velocity from the surface of planet upon escape velocity from the surface of earth is 1 upon root 2। सही जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। सही जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 10वें सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 planets A and B have same material density। okay, density same, density 1 is equal to density 2 if the radius of A is twice the radius of B। radius of A या R of A, कैपिटल R लिखते हैं, चलो, radius of A is twice the radius of B। radius of A is twice the radius of B, then the ratio of escape velocity, क्या बोला है? VA upon VB। ओके, VA upon VB is equal to, यहाँ क्या है? It is directly proportional to the radius, so RA upon RB, and it is directly proportional to the square root of density, so rho A upon rho B। density same,
2 times RB अपॉन RB इंटू रूट ऑफ, या 1 और 2 लिखा है, ओके, यहाँ A और B लिखो, इधर भी A और B लिख दो, कोई टेंशन नहीं. So this is 1:1. The answer is 2. VA upon VB. कितना आया रे? VA upon VB आया 2:1. The answer is B, second option. Question number 11. A body of mass M is to be removed to infinity. Escape कर देना है from the AIEEE यानी अभी JEE जिसको कहते हैं. A body of mass M is to be removed to infinity from the Earth's surface. If R is the radius of the Earth, then kinetic energy which is to be imparted is how much? Kinetic energy which is to be imparted is half of m into VE square. मैं ऑप्शन देखता हूँ और एस्केप वेलोसिटी को लिखता हूँ रूट ऑफ 2gr का स्क्वायर हाफ ऑफ m into 2gr. 2 gets cancelled. The answer is mgr. The answer is mgr. That is B is the correct option. That is B is the correct option. आते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर. गौर कीजिएगा क्या है. क्वेश्चन नंबर 12. 12 क्वेश्चन दिए आज ताकि फंडामेंटल स्ट्रांग रहे. आखिरी सवाल AIPMT है. ओके, एक जेई का हो गया, एक PMT का. चलो बात खत्म. A body projected from the surface of Earth attains height equal to the radius of the Earth. Attains height equal to the radius of the Earth. Okay, H is equal to R. ठीक है, फिर क्या होता है भाई? The velocity with which it is projected. Okay, अर्थ के ऊपर से ऑब्जेक्ट फेंका गया और वो यहाँ A से फेंका गया, B पॉइंट तक जाता है, R इज इक्वल टू H. कितने वेलोसिटी से उसको फेंका गया, यही पूछा है ना, कितने वेलोसिटी से उसको फेंका गया. चलो ढूंढते हैं. क्या करूंगा मैं? टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B. टोटल एनर्जी एट पॉइंट A is potential energy at A plus kinetic energy at A. This is potential energy at B plus kinetic energy at B. Potential energy at A यहाँ पे इतना है minus GMM upon capital R plus half of M into VP. P यानी projected का square. Potential energy at B minus GMM upon R plus H. और जैसे मैं ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका तो एक हाइट पे जाके वो वापस आता है, उस हाइट पे उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो. ओके, सो माइनस GMM अपॉन R प्लस हाफ ऑफ M इंटू VP का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R प्लस H विच इज 2R. फिर हाफ ऑफ M इंटू VP का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर से इधर आ गया, सो इट इज GMM अपॉन R माइनस GMM अपॉन 2R. MM कट हो जाएगा, VP का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू GM अपॉन R कॉमन, 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, VP स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू GM अपॉन 2R. 2 गेट्स कैंसिल्ड. VP is equal to root of GM upon R. है क्या ऑप्शन देखो? VP is equal to, yes, the answer is B, second option. VP is equal to GM upon R. The answer is B, second option. तो बच्चों इसी के साथ हमने तमाम सवालात 12 के 12 सवालात सॉल्व कर लिए हैं. सबके आंसर्स हमारे सही भी आए हैं. आशा करते हैं कि आपको भी ये समझ में आया है. Thank you so much and have a great day.